Hello everybody. I am Sneha, and she is Lucky Ma'am, and he is the legend, Mr. Savan Kumar Tak, our sir. And we are going to interact and talk to him, and let us everybody know how the women empowerment is important in today's life. Even though we have the ladies who are working and are career oriented, but I think there is still this male patriarchy which prevails. So I would like to have the viewpoints of one that is the business entrepreneur, and one who is a legend, the film director, the lyricist, the writer, and there are many more to add to his name. So I don't have to introduce him much. He's in the frame that is the biggest introduction for himself. So let's start, and let's this be a very joyful and a basic conversation so that we can share with you the viewpoints, and we can have the viewpoints of yours as well. So I would like to ask सावंत सर, एंड एक्चुअली आपने बहुत सारी फिल्म्स बनाई है. आई मीन वी डोंट हैव टू इंट्रोड्यूस यू, यू आर इंट्रोडक्शन फॉर योरसेल्फ. आई वांट टू नो कि आपने जो फिल्म्स बनाई थी वो मेजरली विमेन के ऊपर थी. Like I am not against the modern films that are coming up, but there are so many which have lost the flavor, the golden flavor that is missing. So I wanted Savan sir to tell us how is the difference, and how he used to portray about women at those times. I mean, was it the dress code to be short along, or was it the beauty on the face, the expressions? So we want to know, and also Lucky Ma'am will tell us, being a business entrepreneur in the travel industry. So we would like to know how her viewpoints are. So we three are going to tell you more about this. So can we start? Yes, please. Please tell me your viewpoints. About women? Yes, about women, and also about the films that you have been in the making in those times. आपने जो films women के ऊपर बनाया था, वो subject था majorly. You see, the subject and the women will always work. Correct. इसके पीछे मैं आपको बताता हूँ, बगैर औरत के आदमी की वैल्यू क्या है? Exactly. Simple word. Correct. सीधी सीता के बगैर राम कुछ नहीं, राधा के बगैर कृष्ण कुछ नहीं. तो हम लोग तो कुछ मामूली चीज़ है. द्रौपदी के लिए कितना युद्ध हुआ? They fought for गौरव पांडवा. So औरत का तो जन्मदाता है, वो माँ है. औरत को तो कितने रूप हैं, आदमी का तो कोई रूप ही नहीं. Okay. तो मैंने तो अपने पिक्चर में भी गाना था कि अपना सबको रूप दिखाऊं, जब ईश्वर के मन में आया, तब माँ उसने तुझे बनाया, तुझ में अपना रूप सजाया, आज तेरा वो जन्मदिन आया, हैप्पी बर्थडे टू यू. That's so beautiful. So you see, this is what the woman is. She is a mother. Okay. तो वो जो रूप है ना माँ का, वैसा रूप आदमी का कहाँ है? बच्चा उसका कितना भी गलत काम करके आ जाएगा, फिर भी उसको गले लगाएगा, ये बाप तुम्हारे है, ऐसा कर किया, वो क्या है. So this is the difference, because she is full of love, affection and care, and understand the pain of the child, कि अब इसको कितनी तकलीफ हो रही होगी, गलती की किया, ऐसे किया हो. तो ऐसा है. तो वुमेन, इसलिए मैंने हमेशा 20 फिल्में बनाई है, ऑल आर वुमेन ओरिएंटेड. एंड भगवान की दया से 19-20 होता है, लेकिन सब हिटती. जब मैंने स्वतंत्र शुरू किया तो लोगों ने कहा कोई देखने नहीं आएगा. ये टाइटल कैसा रखा है तुमने? हाँ हाँ. मैंने कहा इसमें क्या बुराई है? देयर इज ऑलवेज अदर वुमेन इन पीपल्स लाइफ. तो मैंने कहा नहीं, बहुत ऐसा खराब है, वो औरतें पसंद नहीं करेंगी. मैंने कहा याद रखना दोस्तों, इसको सिर्फ औरतें ही पसंद करेंगी. और जब वो स्वतंत्र लगी तो 80% औरतें होती थी थिएटर में. इतनी बड़ी हिट हुई वो पिक्चर इतनी बड़ी हिट हुई. तो ये क्या, ये कई लोग ट्रैक पे रहते हैं, एक ही ट्रैक पे रहते हैं, वन ट्रैक माइंड. सोचना चाहिए चारों तरफ से. हाँ. सूरज पूरब से निकलता है तो पश्चिम में ढलता है, तो इतना ट्रेवल करता है. तो आप देखो कितनी जर्नी है. यू ट्रेवल अ लॉट इन लाइफ. तो कुछ जो भी करो कुछ नया सोच के करो. अभी मैंने 8-10 साल से फिल्म नहीं बनाई है. Why I am not making the film? Because बीच में काफ़ी और कुछ प्रॉब्लम्स इंडस्ट्री में आ गई थी, बंद हो गए थे सिनेमा, ये वो सब. और जितनी फिल्में बनी थी सब फ्लॉप होती जा रही थी.
तो सिनेमा चल रहे थे तब भी यही हाल था, ए बेकार है, कर बेकार है, कोई ठीक आ गई एक आध दो चार पिक्चर तो वो ठीक है, वो बात नहीं थी, वो स्टैंडर्ड गिर गया फिल्म मेकिंग। तो हमने तो बड़े बड़े डायरेक्टर में गुरुदत्त साहब थे, विमल दा थे, विमल रॉय साहब थे, और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अच्छी अच्छी फिल्में बनाई। तो हमने तो वहाँ से सीखा, हमारा स्कूल तो वो तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। आजकल के लड़के कुछ देखते ही नहीं पुराना क्या है, रामायण कितनी पुरानी हो गई, गीता कितनी पुरानी, उसकी फाउंडेशन देखे कितना असर है। लोग कुरान शरीफ को मुसलमानों से पूछे कितना असर है उनका। So you think there's a great books and great people, great thinkers, those are behind it. So कहानी दुनिया में क्या है, मैं आपको बगैर औरत के दुनिया में कहानी नहीं है। You cannot make a film without women. So the woman is important. कितने रूप तो हैं उसके मैंने बताया। तो इसी पे one should make films. इवन रोमांस, औरत रोमांस करती है, बहन होती है, बेटी होती है, गर्लफ्रेंड होती है, वाइफ होती है, माँ भी होती है, दादी भी होती है, कितना रूप, आदमी तो एक ही है। Well said. So she is taking care of so many roles See, God has created that in power such a into beautiful her. way. Yes, the inner strength. So many roots हैं उसके। हाँ, एक्चुअली इसलिए मतलब आपने जैसे फिल्म्स बनाई है ऑन विमेन, सो वी वुड लाइक टू नो योर व्यू पॉइंट्स एंड योर थॉट्स फॉर द फीमेल्स एंड वुमेन एंड लेडीज इन टुडेज वर्ल्ड who are still dominated by men and some of them crush their dreams about careers and there is lot of inequality अभी भी वो चल रही है ऐसे। तो आपके उसके बारे में क्या आप ऐसा कुछ नहीं है। Now the people are educated, the women is educated. Correct. So they understand the psychology of that man. They love, they marry. So ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो एक दूसरी कोई गलती होती है तो वो समझ लेते हैं आपस के अंदर। वो जमाने चले गए जब पहले तो औरत खाना बनाओ, झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो, चुपचाप बैठ जाओ, घूंघट लगा के, तो ये सब बातें खत्म हो गई हैं। क्योंकि वो भी एक इंसान है, उसकी जिंदगी है, एक उसको भी एक फिल्म देखने का शौक है, रेस्टोरेंट में अपने हस्बैंड के साथ जाने का शौक है, कोई और भी शौक होता है, फुटबॉल देखने का शौक है, पार्टी में जाने का शौक है, तो नथिंग रॉन्ग। ये सोशल चीज़ें हैं सारी। वुमेन तो वुमेन ही है। मैं तो हमेशा वुमेन ओरिएंटेड फिल्म बनाई है। मैंने वो बताया आपको, मैं अपना सबको रूप दिखाऊं जब ईश्वर के मन में आया। डिड आई स्पीक? यस। अभी रिकॉर्ड किया आपने? हाँ, ठीक है। सो दैट दिस इज व्हाट द वुमेन। मेरे तो घर में फोटो, एक मेरी गर्लफ्रेंड है, एक मेरी माँ है और एक मदर टेरेसा होगा। मैं औरतों की पूजा करता हूँ बिकॉज दे आर जननीज। अगर मीना जी नहीं होती तो सावन कुमार नहीं बनता। May God bless her soul in peace wherever she is. But even my mother मुझे हमेशा इंस्पायर करते, तू बड़ा आदमी बनेगा, तू बड़ा आदमी बनेगा। इंस्पिरेशन। हम छोटे से शहर के रहने वाले थे, जयपुर के पास जगह थी सांगाने, तो वो कह रहे कुछ नहीं, बहुत तकलीफ में थे, मेरे फादर की डेथ हो गई थी, हम लोग बहुत टेंशन और ट्रबल में थे, पर कैसे भी भगवान ने सबको बना दिया। वही एक इंस्पिरेशन लाइक यू आर ट्राइंग टू गिव स्पेशली फॉर विमेन दैट आई हैव लर्न दिस फ्रॉम माय मदर। शी हैज ऑलवेज इंस्पायर्ड मी। करेक्ट। तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे एक दिन। मैं कैसे बड़ा आदमी बनूंगा, कुछ नहीं आता है, वो है सब। तो एक शॉप थी कपड़े की, तो तुम इस पर नौकरी कर लो। मैंने कहा इस पर नौकरी करके मैं क्या करूँगा? तेरा टाइम पास होगा, लोग मिलेंगे, देखना, बातें करना, किया ना, और सोचना कि मुझे आगे कैसे जाना है। तो मैंने 15 दिन काम किया, फिर मैं भाग गया, वहाँ से पैसे चुका के भाग गया, चुरा के। तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया। जब मैं बॉम्बे में आया तो यहाँ भी बहुत स्ट्रगल किया मैंने, लेकिन ऊपर वाले को मंजूर यही था मुझे घुमा फिरा के यहाँ लाना था, और उसने मेरे लिए ऐसे रास्ते बनाए कि आप आई कांट बिलीव। मुश्किल है और दूसरे आदमी का ऐसा होना।
जो इंडस्ट्री में जानते हैं सबको, या तो आप सब फलाने के बच्चे हैं, राज कपूर के बच्चे हैं, फलाने के बच्चे हैं, तो वो तो एक फैमिली ट्रेडिशन चला रहा है। तो वहाँ राज जी ने कितना स्ट्रगल किया होगा, बच्चों ने तो नहीं यार इतना, उनको तो वो सब फैसिलिटी, एजुकेशन, केयर, लव सब कुछ मिला, लेकिन फिर भी कितने अच्छे एक्टर निकले सबके, कितने अच्छे लड़के हैं उनके। तो बस ऐसे ही है। I picked up this word आपने जो भी बोला ना, like when we go through the struggle, when we go through, and then when we have our parents who motivate us, and then God makes a way, and when you go through, there's a way also at the parallel side. So this thought I think मुझे बहुत अच्छा लगा, and this is really encouraging for all women. And now I would like Lucky ma'am to talk about this now. Well, I would say कि हर वुमेन में कुछ ना कुछ खूबियां होती हैं, सब में होती है, हर इंसान में होता है। हाँ, औरतें ही नहीं है। Yes. बट मेनली लाइक वुमेन्स को जो पहले की जनरेशन देखा जाए तो उनको ऑलवेज दबा के रखा गया है, उनको बाहर निकलने ही नहीं दिया गया। सोसाइटी का प्रॉब्लम पहले कुछ लोग भी खराब शायद होते थे, लोगों को डर लगता था कि रात को कहाँ जा रही है अकेली। बिल्कुल, वो अपने सपने बिल्कुल जी नहीं पाती थी, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाती थी। लेकिन आज देखो आप, वुमेन कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, चांद तक वुमेन पहुँच गई है। तो आप अगर ठान लो कि मुझे ये अचीव करना है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, स्पेशली अ वुमेन, बिकॉज वुमेन कैन इज अ होम मेकर। घर में वो अगर घर में रहती तो वो अगर वो जॉब नहीं कर रही फॉर एग्जाम्पल, तो शी इज अ नर्स, शी इज अ कुक, शी इज अ टीचर, शी इज अ फ्रेंड टू हर हस्बैंड, टीचर फॉर हर किड्स। सो दैट्स वे उसके काफी अनेक रूप हैं जो घर में वो केटर करती है। एक इंसान 24/7 शी इज अप ऑन हर फीट, एंड जो करियर ओरिएंटेड होती है वो घर भी संभालती है, वो अपना करियर भी संभालती है, बाहर जाके उसका जो गोल है वो अचीव करने के लिए बहुत स्ट्रगल भी करती है, उसके बहुत हर्डल्स भी आते हैं, बट शी गोज थ्रू इट, एंड वो सोचती है कि मुझे यहाँ पहुँचना है और वो पहुँच के दिखाती है। दैट इज अ वुमन। So that means nothing is impossible. So Nothing. आपने अभी जो इसके पहले बोला कि वो बहुत सारे hurdles आते हैं, तो can you just elaborate and explain that, focus on Well, that? yes, I can. Hurdles in a sense, like for example, society hurdles, Okay. family hurdles भी हो सकते हैं। Majorly family. Yes. Yes. जैसे आपके आप शादीशुदा नहीं है फॉर एग्जाम्पल, Okay. आपके मम्मी पापा बोलेंगे ओह यू कांट डू दिस, आई थिंक अभी तुमको शादी करनी चाहिए, तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम कब तक एक अपने इस सपने के पीछे दौड़ती रहोगी, तुम्हारा वो सपना नहीं मिलेगा तुम्हें, अभी बस सेटल हो जाओ लाइफ में। बट वो जो स्ट्रॉन्ग माइंडेड वुमेन होती है वो अपने गोल को अचीव करने के लिए शी विल फाइट बैक डिप्लोमेटिकली, नॉट एक वायलेंस करके नहीं, बट अपने प्यार से समझाने के तरीके से कि भाई मैं कैसे ये अपने करियर को अचीव कर सकती हूँ। सेटल होके पता नहीं उसका हस्बैंड उसे सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, उसके इन लॉज उसे सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे। और कई वुमेन ऐसी होती हैं जैसे शादी से पहले भी शादी जल्दी उम्र में करवा दी है, उसके सपने थे वो कुछ बोल नहीं पाई, शादी के बाद वो अपने सपने पूरा करना चाहती, बट उसका पति उसका साथ नहीं दे रहा है, उसके इन लॉज साथ नहीं दे रहे हैं। बहुत कम परिवार ऐसे होते हैं जो उनके हस्बैंड सपोर्टिव रहते हैं, उनके बच्चे सपोर्टिव रहते हैं। आई नो वुमेन जिनके बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, उनके हस्बैंड है लेकिन वो बहुत सपोर्ट करते हैं अपनी मदर को या वाइफ को कि नहीं माँ आप कर सकते हो ये काम। मैं जब अब तो ऐसा है कि टाइम्स हैव चेंज्ड, देयर इज नो हर्डल्स लाइक दिस। अगर आप में टैलेंट है तो आपको सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है, पीपल आर लुकिंग फॉर द टैलेंट, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर ये टैलेंट नहीं होता तो दुनिया बसती ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। घर तो पहले भी बनते थे, मिट्टी के बनते थे, लेकिन वो भी लोग थे, और आज के लोग में 20 फ्लोर 50 फ्लोर की बिल्डिंग बना देते हैं। Creativity goes on, and it will go on. Still we think we know so much, and I think after 10 years, 15 years, people will say they didn't know that much. We know more than this. Absolutely. It's an unending process. Unending process.
Yes, तो yes. वो एक अजीब बात है। अभी मैं कई बार जो है ना, मैं मेरी फिल्मों में यही हो, जब भी मैं कोई फिल्म बनाता था, ये नहीं चलने वाली है, बिकॉज दे कुड नॉट इवन थिंक टू दैट लेवल। पहले तो मैंने स्वतंत्र टाइटल रखा, क्या स्वतंत्र टाइटल रखा है, कोई देखने नहीं आए। उससे पहले मैंने रखा था साजन बिना सुहागन। लो, ये कोई होता है क्या, साजन बिना सुहागन टाइटल रख दिया है, नहीं चलेगी। इस तरह से लोग क्रिटिसाइज करते थे, और जब वो चली तो फिर वो मेरे लिए फूल भी लेके आए। So this is how life goes on. आपको जो करना है आप करिए, Yes. समझे। एक ही बात याद रखिए, बंदा परवर मैं वो बंदा हूँ कि बहरे बंदगी, जिसके आगे सर झुका दूंगा खुदा हो जाएगा। बस ये याद रखिए, आप अपना काम करते जाइए। आपका मन बोलता है ना तो करते जाइए, लेकिन दिमाग तो एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है, पर मन जो है वो एक भावना, ऐसा इमोशन, ऐसी फीलिंग है जो आपको सूरज तक ले जा सकता है। जी जी जी। बस करेक्ट। और मेजरली तो आई वुड लाइक टू से कि मतलब लाइक आई वुड लाइक टू से कि सावंत सर और लकी मैम, दे बोथ हैव बीन मोटिवेटिंग लाइक मी पर्सनली, एंड लाइक he's been making so many films on women, and like you know he used to, and it's like you know it's a beautiful like you know many comebacks, so it is like that, so he gives a lot of respect to the women, so it is a very beautiful experience to have this देखिए, topic वुमेन come up. दरगाह इतना बड़ा है Correct. कि वो माँ होती है, तो उससे बड़ा क्या है दुनिया में। Exactly right. सब रिश्ते खत्म माँ के सामने, तो शी इज गोइंग टू बी मदर टुमारो। तो वुमेन को इतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जो मुझे मालूम है सोसाइटी में पीपल मिस यूज एंड पीपल टॉक समथिंग समथिंग समथिंग, ये सिर्फ जवानी का जोश है, पैसे का जोश है, या बदमाशी का जोश है, कुछ भी है। आई डोंट नो क्यों ऐसा उनके दिलो दिमाग में इस तरह की बातें चलती हैं, लेकिन दे आर मेड फॉर ईच अदर। गिव अ फीलिंग दैट आई केयर फॉर यू, आई लव यू, लेट्स गेट मैरिड, लेट्स बी इन whatever, that is the best way of doing it. But अभी तो बहुत कम हो गया, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा जुल्म होता था औरतों पे। तो ये ऐसे है कि समझते समझते समझेंगे लोग, क्योंकि यहाँ पर इतना अभी जाके कंट्रोल हुआ लॉ का और कोर्ट्स का, इसका उसका, तो लोग डरने लगे। पहले कोई डरता ही नहीं था। Law and order, correct. इलिटरेसी, फिर गांव के अंदर चौकरे, कोई लड़की जा रही पड़ोसी में, जा रही है, वो जा रही है, छेड़ते रहते थे, कुछ तो बोल के छेड़ते थे, कोई सीटी बजाते थे, कोई क्या करता था, कुछ न कुछ करते रहते थे। अब नहीं रहा, अब तो गांव के लोग भी समझदार हो गए। तो लकी मैम, आपको क्या लगता है, मतलब अगर कोई लेडी को है ड्रीम्स करियर में और आगे बढ़ने का, लाइक इवन पोस्ट मैरिज, इवन दो शी इज मैरिड, so what are your viewpoints? I would like to know, for example, if there is a career oriented girl, should she get married or she shouldn't? नहीं, if her partner is supportive, let her get married. लेकिन उसे लगता है कि उसका कोई पार्टनर है नहीं और शादी के लिए लड़के ढूंढ रहे हैं, वो बहुत करियर ओरिएंटेड है, then she should give time to her career first. तो शादी के बाद उसे पता नहीं है कि वो अपने ड्रीम्स या गोल को अचीव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। Because many people change, like I'm talking about like if they are married, then like you know she has to give a thought before that. Yes, Correct. because she has responsibility, family responsibility. इसलिए भगवान ने आपको दिमाग दिया, बात तो सोच के ही करनी चाहिए ना। Correct. आप जब पहला कदम उठाते हैं तो दूसरा कदम भी देख के उठाइए, नहीं तो नीचे खड्डा हुआ गिर जाएंगे आप। Once a So step. you have to take every step, think and go ahead in life। कि आपका मन क्या बोलता है, आपका दिमाग क्या बोलता है, आपकी आंखें क्या बोलती हैं, आपके कान से उसका साउंड क्या बोलता है। देयर सो मच सिस्टम इन योर बॉडी, आप उसका यूज़ करिए, समझिए बात को, फिर आपका दिल दिमाग जो भी आपको गाइड करता है उसकी सुनिए एंड टेक ए चांस। अभी मैं सोच सकता था कभी कि मैं तो आया था एक्टर बनने के, सर एक्टर नहीं बन सका, मैं डायरेक्टर बन गया, वन ऑफ द टॉप डायरेक्टर्स वन टाइम। ऐसी ऐसी हिट फिल्में बनाई मैंने, राइटर, डायरेक्टर, सॉन्ग राइटर बन गया। वो सब कैसे कैसे हो गया मुझे खुद नहीं मालूम, मैं तो कुछ नहीं जानता था, मैं कभी असिस्टेंट रहा ही नहीं किसी का एक दिन भी। It was a great journey. फर्स्ट फिल्म आई डायरेक्टेड मीना कुमारी,
उनको मैंने कहानी सुनाई तो बस वो बोलने की कौन कौन, मैंने कहा आप बताइए डायरेक्टर किसको, लोग बोले तुम डायरेक्ट करोगे तो काम करूँगा। कहाँ से कहाँ किस्मत देखे, सुपरस्टार उन्हीं का फोटो है मेरे घर में किसी और का नहीं है। How beautifully you are remembering the important ladies in your life. Always my mother, she and all women always inspired me. You really respect them. और Yes. मैंने सब women oriented फिल्में बनाई। Correct. वो women तो क्रिएटर है ना, बाय नेचर मदर है, वो नहीं हो तो दुनिया चले नहीं। This is how it is. आपको लकी मैम आप और क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? Well, I think we have said enough and Yes, for the there's some points. रिपीटेड हो जाता है। Yes. जी जी जी. So this is what it is. खाना खाया जाए। Yes. So thank you very much for viewing us and listening to us. And you can always put your comments in the comment box. Thank you very much. घंटी देना कितना